আবারও আলোচনায় এসেছেন হিজাব নিষিদ্ধের প্রতিবাদে আন্দোলন করা সেই তাবাসসুম। এবার হিজাব নিয়ে নয়, পরীক্ষায় প্রথম হয়ে খবরের শিরোনাম হয়েছেন তিনি। ভারতের হিজাব আন্দোলনের সময় আলোচনায় আসা সেই তাবাসসুম সাইক এবার দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় কর্ণাটক রাজ্যের ভেতর প্রথম হয়ে সাড়া ফেলেছেন গোটা ভারতে। आपकी मुलाकात कर्नाटक की उस मुस्लिम छात्रा से करवाना चाहते हैं और अब 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाओं में कर्नाटक में टॉप किया है और ये वही मुस्लिम छात्रा है जिसने कर्नाटक में पिछले साल हुए हिजाब आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अभी यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये इतना अच्छा करेगी। मुझे था ये बहुत मेहनत करती थी और बहुत पढ़ती भी रहती थी, तो हम लोगों को यकीन था आएगा, लेकिन फर्स्ट आएगी ये बहुत सरप्राइज़ हो गया है। अभी हम पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये रमज़ान में हम इतनी बड़ी खुशी नसीब करें हैं और ये कॉलेज में बहुत सपोर्ट किया है, टीचर्स, प्रिंसिपल और बहुत स्टाफ, ये बहुत सबका बहुत तारीफ़ करते हैं। हम कांग्रेस करते हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं। When I was 5 years old मैं हिजाब पहन रही हूँ, मेरे आइडेंटिटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो कॉलेज तक पहन कर जाएंगे और फिर क्लासेस अटेंड करेंगे। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। দেশ বা দেশের বাইরে যে যেখান থেকে ভিডিওটা দেখছেন সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। প্রিয় দর্শক, আপনাদের সকলের কাছে একটা অনুরোধ থাকবে, একটা রিকোয়েস্ট, দয়া করে পুরো ভিডিওটা সম্পূর্ণ না দেখে কোথাও যাবেন না। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, হিজাব আন্দোলনের সেই মুস্কান এবারে দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় কর্ণাটক রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। আপনারা কি ভুলে গেছেন নাকি মনে রেখেছেন? ভারতের কর্ণাটকে হিজাব নিষিদ্ধ করায় আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে পুরো বিশ্বের মাঝে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল আমাদের এক প্রিয় বোন মুস্কান শেখ তাবাসসুম। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, অবশেষে সেই তাবাসসুম শেখ মুস্কান তিনি দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে পুরো কর্ণাটক রাজ্যের মধ্যে। এর আগে তিনি দিয়েছিলেন ইমানি শক্তির পরিচয়, এবারে তিনি দেখিয়ে দিলেন তার মেধার শক্তি। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের হিজাব আন্দোলনের সেই তাবাসসুম শেখ মুস্কান দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় কলা বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। মোট 600 নম্বরের পরীক্ষায় 17 বছরের এই বোন 593 নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। হিন্দি, সমাজবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানে তিনি 100তে 100 পেয়েছেন না। তাবাসসুম শেখ ওরফে মুস্কান খান ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি নিয়ে বিদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন। গত বছরের জানুয়ারিতে কর্ণাটকের উদুপি জেলায় এক স্কুলে হঠাৎ করেই হিজাব নিষিদ্ধ করা হয়। কর্তৃপক্ষ ফরমান জারি করে হিজাব বা ওই ধরনের কোনো ধর্মীয় পোশাক পরে ক্লাস করা যাবে না। তখনই তিনি বোরকা হিজাব পরে প্রতিষ্ঠানে গেলে কিছু উগ্রবাদী, হিন্দুত্ববাদী, কিছু গেরুয়াপন্থী মানুষ আমাদের এই বোনকে উত্তপ্ত করে। তার প্রতিবাদ জানিয়েছিল আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে। তখন তিনি যেভাবে তার ইমানের শক্তি দেখিয়েছিলেন, ঠিক একইভাবে এবারও তার মেধার শক্তি দেখালেন। চলুন কথা না বাড়িয়ে কয়েকটা প্রতিবেদন থেকে বিস্তারিত জেনে আসি এবং আমরা আমাদের সেই প্রিয় বোন তাবাসসুম শেখ মুস্কানের অনুভূতিটা দেখব কয়েকটা ভিডিও থেকে, তারপরে কথা বলবো। আশা করি সঙ্গে থাকবেন পুরো ভিডিওটা জুড়ে আমাদের। ভারতের হিজাব আন্দোলনের সময় আলোচনায় আসা সেই তাবাসসুম সাইক এবার দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় কর্ণাটক রাজ্যের ভেতর প্রথম হয়ে সাড়া ফেলেছেন গোটা ভারতে। ভারতের কর্ণাটকে অনুষ্ঠিত 600 নম্বরের এই পরীক্ষায় 17 বছরের এই কিশোরী 593 নম্বর পেয়ে অর্জন করেন প্রথম স্থান। পরীক্ষায় হিন্দি, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানে তিনি পেয়েছেন 100তে 100 নাম্বার। 2022 সালের জানুয়ারিতে ভারতের কর্ণাটকের এক স্কুলে হঠাৎ করেই মুসলিম ছাত্রীদের হিজাব পরা নিষিদ্ধ করে কর্তৃপক্ষ। হিজাব বা কোনো ধরনের ধর্মীয় পোশাক পরে ক্লাস করা যাবে না বলে ফরমান জারি করে তারা। বোরকা বা হিজাব পরে স্কুল কলেজে এলেও শ্রেণীকক্ষে তা খুলে ফেলতে হবে, যেখানে স্কুল ইউনিফর্মই একমাত্র পোশাক। উদুপি স্কুলের সেই ফরমান ক্রমেই ছড়িয়ে পড়ে রাজ্যের অন্যান্য স্কুলগুলোতে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দেখা দেয় ধর্মীয় উত্তেজনা। রাজধানী বেঙ্গালুরুতেও আছড়ে পড়ে সেই ঢেউ। দুই ধর্মের উগ্রপন্থীদের আচরণে দেখা দেয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হওয়ার শঙ্কা।
ঘটনার পর ওই ফরমানের বিরুদ্ধে মামলা করেন মুসলিম ছাত্রীরা, কিন্তু কর্ণাটক হাইকোর্ট জানিয়ে দেন হিজাব ইসলামের অপরিহার্য অঙ্গ নয়, স্কুলের ইউনিফর্মই শেষ কথা। রাজ্যে হিজাব বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখন তাবাসসুম ও তার অন্য 5 বান্ধবী সিদ্ধান্ত নেন বেঙ্গালুরের স্কুলে না যাওয়ার। অনেক দিন বাড়ি বসেছিলেন তারা, এরপর একদিন মন বদলান। সংবাদ মাধ্যমকে তাবাসসুম বলেছিলেন, কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পোশাকের ওপর সরকারি বিধিনিষেধ থাকা উচিত নয়। শিক্ষা গ্রহণ ও ধর্মাচরণ দুটি আমার অধিকার। তিনি আরও বলেছিলেন, 5 বছর বয়স থেকে হিজাব পরে আসছি, হিজাব পরতে আমার ভালোও লাগে, পোশাকটির প্রতি একটা অধিকার বোধ জন্মে গিয়েছে। সে সময় তাবাসসুমের কথায় অনেকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করলেও তার প্রতিবাদে স্বরূপ তিনি চালিয়ে যান পড়াশোনা, আর সেই ফলই যেন এখন পেলেন তিনি। দ্বাদশ শ্রেণীর পরীক্ষায় ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন তিনি। তাবাসসুমকে শাবাশি জানিয়ে টুইট করেছেন কংগ্রেস নেতা শশী থারুর। মা বাবার সঙ্গে এই মেধাবী ছাত্রীর ছবি দিয়ে কেরালাল এই কংগ্রেস নেতা লিখেছেন, সাফল্যের সবচেয়ে বড় প্রতিবাদ, শাবাশ তাবাসসুম। When I was 5 years old, मैं हिजाब पहन रही हूँ। मेरे आइडेंटिटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो कॉलेज तक पहन कर जाएंगे और फिर क्लासेस अटेंड करेंगे। कर्नाटक में जब पूरा हिजाब विवाद चल रहा था, तब एक लड़की थी जिसने हिजाब पर उस पूरी कंट्रोवर्सी पर एक डिसीजन लिया और कॉलेज जाना चुना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए, उसके बाद पीयू के कोर्स के लिए। उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो पता चलता है कि उस लड़की ने टॉप किया। 600 में से 593 मार्क्स आए, 98.3% टू बी प्रिसाइज, और फिर हर जगह वो न्यूज़ में छा गई। तो आज हम उसी लड़की से, जिसका नाम तबस्सुम शेख है, उनसे मिलने आए हैं, उनसे बात करने आए हैं, उनकी जर्नी जानने आए हैं। सबसे पहले तो तबस्सुम, बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कैसा महसूस कर रही हैं आप? आई एम फीलिंग बहुत खुशी महसूस हो रही है। लाइक अभी भी मैं प्रोसेस कर रही हूँ कि क्या ये सच्चाई है। लाइक बहुत खुश हूँ। पहली बार जब पता चला कि ऐसे टॉप किया है तो क्या क्या लगा, कैसे पता चला? मुझे मेरे टीचर्स ने इन्फॉर्म किया सबसे पहले। लाइक बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, और जब पिकअप किया तो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि कंग्रेट्स, तुम ही स्टेट की फर्स्ट रैंक टॉपर हो। एंड मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि दिस इज़ रियलिटी, एंड आई थॉट आई वाज इन अ ड्रीम। सपना देख रही हूँ ऐसे लग रहा था, लेकिन बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। और फिर आफ्टर टीचर्स के विशेस के बाद मेरे पेरेंट्स भी आकर मुझे कंग्रेचुलेट कर रहे थे। तो और मम्मी पापा का पहला रिएक्शन क्या था जैसे ही पता चला कि बेटी ने तो स्टेट में टॉप कर लिया पूरे कर्नाटका में? बहुत खुश थे, लाइक खुशी के आंसू बहा रहे थे वो लोग। बहुत रोई मम्मी? हाँ, बहुत रोई। अच्छा, अभी अभी ईद गुजरी है। हाँ। खूब ईदी मिली होगी इस बार तो, क्योंकि टॉप किया है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह खूब मिली। अच्छा, अब हम बात करते हैं कंट्रोवर्सी पर जो शुरू हुई थी। क्या हुआ था जब पूरे प्रदेश में हिजाब पर विवाद चल रहा था? तब आपने कैसे डिसाइड किया कि आप कॉलेज हिजाब के बिना जाना चुनेंगी? क्या मम्मी पापा ने कहा या ये आपका पर्सनल डिसीजन था? मैं बहुत दुखी थी, मुझे बहुत लाइक अनफेयर लग रहा था, बहुत इलॉजिकल, अनजस्ट लग रहा था। और मैं 2 हफ्ते कॉलेज नहीं गई क्योंकि आई वॉज़ वेरी डिप्रेस्ड एंड कन्फ्यूज्ड। और आई डिड नॉट अंडरस्टैंड लाइक क्या करूँ अब मैं, लाइक कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। लाइक फ्रॉम अ वेरी यंग एज, फ्रॉम ऑलमोस्ट व्हेन आई वाज 5 years old, मैं हिजाब पहन रही हूँ। मेरे आइडेंटिटी का बहुत एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, और इसलिए मैं बहुत कंफ्यूज्ड थी। तो मेरे माता और पिता दोनों ने मुझे समझाया कि ये सब एक चाल है मुस्लिम्स को और बैकवर्डनेस में पुश करने के लिए, फ़ीमेल एजुकेशन पर लाइक फुल स्टॉप लगाने के लिए। तो इसलिए दे सेड दैट अगर मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगी एंड इफ़ आई गो गेट टू अ पोजीशन फ्रॉम वेयर आई कैन अपलिफ्ट अदर पीपल इन माय कम्युनिटी, ये बहुत अच्छा होगा मुस्लिम्स के लिए एज अ होल, और दूसरे माइनॉरिटीज़ को भी एक इनकरेजमेंट मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, जाओ कॉलेज को और अपनी पढ़ाई हासिल करो। तो इसलिए दैट एनकरेज मी, क्योंकि आई रियलाइज़ लाइक मेरे भविष्य पर बहुत इम्पैक्ट था इसका। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि चलो कॉलेज तक पहन कर जाएंगे और फिर क्लासेस अटेंड करेंगे। तो आप कॉलेज तक हिजाब पहन कर जाती थी, फिर कॉलेज के बाहर आप उतारती थी? हाँ, उधर एक रूम देते थे। हाँ, एक रूम प्रोवाइड किया था, तो उधर जाकर सब कुछ बैग में रखना पड़ता था और फिर क्लासेस अटेंड करना पड़ता था।
तबस्सुम, आपकी जो कहानी है उसमें आपके पेरेंट्स का भी सपोर्ट था। उन्होंने कहा कि जाओ, आपको समझाया। बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जो बचपन से हिजाब पहनती हैं और जब ये हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, कर्नाटका हाई कोर्ट का, तो उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल जाना बंद कर दिया, कॉलेज जाना बंद कर दिया। उसकी वजह से उनको जो नुकसान होता है, क्योंकि कई बार पेरेंट्स भी नहीं अलाउ करते, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मेरे कई सहेलियां थी जिन्होंने माय ओन क्लासमेट्स, मेरे ओन फ्रेंड सर्कल में बहुत लोगों उनको दे कुड नॉट टॉलरेट दैट, क्योंकि लाइक आई सेड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर आइडेंटिटी एंड रिलीजन। तो वो ड्रॉप आउट हो गए कॉलेज से, दे वेंट फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस एंड अदर ओपन कोर्सेज एंड दे आर गोइंग टू गिव देयर एग्जाम्स इन अ फ्यू मंथ्स एंड मुझे बहुत उदास फील हुआ उससे। एंड मेरा सवाल ये था कि उन जो लड़कियों की पढ़ाई छूट जाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब आप क्या फील करती हैं, या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए? I respect their decision. Like I can understand what they are going through, or even after I chose that, I felt very guilty. So I can understand how they feel. लेकिन कैसे भी करके उन्हें अपना एजुकेशन हासिल करना चाहिए, क्योंकि that will empower them. They will be able to inspire so many other girls, and they can also like prevent such injustices in the future. तो इसलिए आई वुड एनकरेज देम टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड टू परस्यू देयर एजुकेशन नो मैटर थ्रू व्हाट मीन्स। तबस्सुम, एक बहुत बड़ा तबका है जो इस बात का विरोधी है कि स्कूल में हिजाब नहीं पहनना चाहिए। उनके ये तर्क होते हैं कि आप यूनिफॉर्म जब पहनते हो तो इसीलिए यूनिफॉर्म पहनते हो कि सब एक जैसे लगें, उसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट होता है। आप उस पर क्या कहना चाहेंगी? मैं जब स्कूल में पहनती थी और जब कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर सारा वर्ष मैंने पहना था हिजाब, इट वाज नेवर कोई भी डिफरेंस नहीं फील होता था। इनफैक्ट वी यूज्ड टू फील मोर यूनाइटेड, क्योंकि जो डिफरेंस दिखता था एंड द फैक्ट दैट वी कुड स्टिल कनेक्ट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, ये हमें और क्लोजर लाता था। इट वाज नेवर लाइक ओ ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ऐसा कभी नहीं महसूस होता था। मेजॉरिटी ऑफ माई फ्रेंड्स आर हिंदूज़ और दे आर वेरी क्यूरियस लाइक क्यों पहनती हो ये सब कुछ, बट दे आर ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टफुल एंड इट वाज नेवर लाइक ये है हम लोगों को लाइक सेपरेट कर रहा है। इट वाज मोर लाइक वी आर कमिंग टुगेदर। इंडिया में जो यूनिटी है ना, देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इट वाज लाइक दैट एंड इट वाज नॉट लाइक यू नो वी आर डिफरेंट। तो द पीपल हु से दैट आई स्टर्नली डिसअग्री विद देम, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। यूनिफॉर्म पहनो या ना पहनो, हमारे मन में जो होता है दैट इज़ व्हाट वी रिफ्लेक्ट इन आवर इंटरैक्शंस, राइट? तो हम हमेशा संग थे, साथ थे एंड वी नेवर फेल्ट दैट ये अलग है। एक आखिरी सवाल इस कंट्रोवर्सी पर करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपके फ्यूचर पर जाऊँगी। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जो लोग प्रो चॉइस हैं, जो इस बात के समर्थक हैं कि जिसको जो खाना है, जो ओढ़ना है, जो पहनना है, वो अपने हिसाब से करें, वो भी कभी कभी ये बात कहते हुए सुनाई देते हैं कि ये सब ना ब्रेन वॉशिंग का तरीका है, या फिर पेरेंट्स का थोपा हुआ है किसी भी बच्चे पर, किसी भी बच्ची पर जो 5 साल की, 4 साल की है, उसको तो ये ब्रेन वॉश करके या बचपन से फीड किया गया ना, इसीलिए उसकी चॉइस हिजाब है। अदरवाइज़ 18 साल की उम्र तक आप उसे ना पहनाओ, उसके बाद वो उसकी चॉइस होनी चाहिए, वो पहनना चाहे ना पहनना चाहे। It's not like as soon as we turn 18, we suddenly become all aware and intelligent. उससे कम उम्र से ही हमें पता होता है कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, हमारे अतराफ क्या चल रहा है। और जब हमारे ऊपर जब पेरेंट्स लाइक ऑब्वियसली इट इज़ देयर ड्यूटी राइट टू पास ऑन द रिलीजन, तो जब वो हमें सिखाते हैं कि हिजाब पहनो, तो ऑब्वियसली हम क्वेश्चन करते हैं कि क्यों पहनना है। तो अगर जो वो कहते हैं, अगर हम वो अंडरस्टैंड करते हैं, उससे सहमत है, जब भी हम पहनते हैं, तो इट वाज दे इनकलकेट इट इन अस एंड इट इज़ आवर चॉइस टू डॉन इट एवरी डे। सो दिस इज़ नॉट अप्रेशन, दिस इज़ नॉट समथिंग विच वाज इम्पोज्ड अपॉन अस, दिस इज़ आवर चॉइस। वी वेंट थ्रू लाइक हमारा रिलीजन क्या सिखाता है वो सीख रहे हैं एंड येस वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट, वी वांट टू प्लीज़ अल्लाह, राइट? तो इसलिए हम पहन रहे हैं। इट इज़ नॉट अबाउट ब्रेन वॉशिंग एट ऑल। कितनी कॉन्फिडेंट और क्लियर है तबस्सुम आप अपने थॉट्स में, ये देख के मुझे इतना अच्छा भी लग रहा है और मैं इतनी इम्प्रेस्ड भी हूँ आपसे। मैंने एक इंटरव्यू में पढ़ा कि आप अब फ्यूचर में लिबरल आर्ट्स पढ़ना चाहती हैं। क्यों लिबरल आर्ट्स पढ़ना चाहती हैं? मुझे हमेशा सोशल साइंसेस के जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, दे फेल्ट मोर रेलेवेंट। लाइक जो भी चल रहा है इस सबको समझने के लिए, हमारी सोसाइटी को और ह्यूमन बीइंग्स जो सारे लोग बहुत अलग है, बहुत यूनिक है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए ये बहुत सहायता करते हैं। इसलिए आई थॉट ये लेते हैं
क्योंकि साइंसेस तो दे आर लाइक ओवरफ्लोइंग नाउ. क्यों लिबरल आर्ट्स के लिए इतना अटेंशन नहीं है व्हेन इट हैज़ सो मच इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ? आई कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट. It defied logic. That is why I decided that no matter what society says, I will still go for liberal arts only. क्योंकि I thought that at the end of the day, my parents will also be happy as long as I am happy. और अगर मैं liberal arts choose करूँगी तो I definitely felt that I could create a career in which I would be satisfied. तो क्या करियर आप बनाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? I want to become a clinical psychologist. My God, I'm so happy, I'm so proud of you. अच्छा ये बताओ, मम्मी पापा क्या ऐसे बहुत फोर्स करते थे? कितने घंटे पढ़ाई की थी टॉप करने के लिए? एक्सपेक्टेड था कि टॉपर्स में तो कहीं ना कहीं नाम आएगा? या तो एक्सपेक्ट तो कर रही थी, लेकिन उसके लिए मेहनत भी ज़रूरी है. तो कॉलेज में ही मैं फुल नोट्स बना लेती थी. लाइक हमारे लेक्चरर्स दे वर वेरी वेरी गुड. तो बहुत डिस्कशन एनकरेज करते थे और बहुत इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते थे. तो मैं सब कुछ लिख कर लाती थी. घर आकर थोड़ा समय रेस्ट करने के बाद आई यूज्ड टू गेट बैक इनटू इट. तो कॉलेज से आने के बाद ऑलमोस्ट 3 आवर्स आई यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड टू रिवाइज नोट्स. और फिर सुबह 4 को उठकर पहले आई यूज्ड टू प्रे एंड देन फिर से रिविजन. और अगर कुछ नोट्स बनाने हैं और तो मैं अगर कोई गैप्स है अंडरस्टैंडिंग में, मैं आई यूज्ड टू क्लियर दैट अप. और ऐसे ही मेरा डेली रूटीन था. और हमारी कॉलेज वालों ने दे रेस्पेक्टेड दैट हर बच्चे का अलग तरीका होता है पढ़ाई करने का. तो इस कारण उन्होंने हमें 1 मंथ ब्रेक दिया था, इन विच स्टडी हॉलीडे था. तो हम जैसे चाहे वैसे पढ़ सकते हैं और हम हमेशा उनको कांटेक्ट कर सकते थे टीचर्स को डाउट्स क्लियर करने के लिए. तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल. दैट इज़ व्हेन आई वाज एबल टू स्टडी ऑलमोस्ट 8 to 12 आवर्स डेली. तो 8 से 12 घंटे डेली? या तो ये वो ड्रीम बच्ची है जो मेरे मम्मी पापा ने ऐसे ख्वाब देखा था कि कभी मैं ऐसी बनूंगी. कभी मैं नहीं बन पाई. फिर इतना पढ़ाई करने के बाद चिल करने के लिए क्या करती थी? मैं एनिमे देखती थी, थोड़े बहुत सिटकॉम्स देखती थी और यूट्यूब बहुत देखती थी. एनिमे में क्या क्या? जैसे मेरा फेवरेट हंटर है. एंड अदर देन दैट आई ऑल्सो लाइक फ्रूट्स बास्केट. एंड लाइक थोड़े शॉर्ट टूर वाले ही मैं देखती थी. लाइक इफ इट्स टू लेंदी कमिटमेंट हो जाता था ना. और यूट्यूब पर क्या देखती थी? यूट्यूब पर आई यूज्ड टू लाइक बहुत सारे चैनल्स हैं. जैसे कोई भी अगर 1-2 शेयर करना चाहें, चिल करने के लिए या थोड़ा सा लाइट फील करने के लिए. ओके, तो लाइक आई वाज इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, तो थोड़े वो वाले चैनल्स देखती थी. अदर देन दैट देयर इज़ दिस चैनल कॉल्ड सिनेमा थेरेपी. तो उस पर एक थेरेपिस्ट और एक फिल्म मेकर दोनों मूवीज़ देखते हैं. एंड द थेरेपिस्ट विल एनालाइज लाइक मूवी में क्या क्या कैरेक्टर्स, कैसा पर्सनालिटी दिखा रहे हैं. और फिल्म मेकर वुड से लाइक ये मूवी बनाने में क्या क्या लगा था. तो मुझे वो बहुत पसंद था देखने के लिए, बिकॉज आई फेल्ट दैट आई एम एक्वायरिंग नॉलेज वाइल ऑल्सो लाइक और लाइटर वे में. हाँ, एग्जैक्टली, इन अ लाइट वे. सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू वॉच दैट चैनल अ लॉट. आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने थॉट्स में बहुत क्लियर हैं. यंग लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि आप इतना पढ़ाई पर भी फोकस करती हैं, आप इस बात को लेकर भी बहुत समर्थक है कि सबको पढ़ाई मिलनी चाहिए. जो भी बच्चियां हैं आगे जाना चाहती हैं, या उनके लिए आप कोई अगर मैसेज देना चाहें फ्रॉम योर लाइफ, फ्रॉम योर लर्निंग्स. कोई एक ऐसा होता है ना, मेरी लाइफ का तो एक सूत्र है कि मुझे इस पर तो मैं बिलीव करती ही हूँ. I always want to speak my mind, like I want to put it out there. तो अगर कोई thought है आपके मन में तो हमेशा उसको convey कीजिए. Like you need to be confident in yourself, right? You know who you are. तो you should be always like put yourself out there. That is the best way to like get your message across. तो I always believe in speaking my mind. और इतनी clarity कैसे आती है thoughts में? मैं बहुत like I like reading books a lot. So when I used to read, like I saw that my vocabulary was developing. So from a very young age, I became very confident in my ability to talk, about my speaking skills. So that's why I never hesitate. अच्छा तबस्सुम, एंड में अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स और पढ़ाई की स्ट्रैटेजी बता दो, क्योंकि पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन वो नंबर्स में नहीं कन्वर्ट होता ना. हाँ, तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स इन माई PU वाज साइकोलॉजी एंड इंग्लिश. इंग्लिश में तो बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स भी मिलते थे, और साइकोलॉजी तो दैट वाज माय मेन फोकस राइट फॉर लाइफ. लाइक आई वांट टू बिल्ड अ करियर इन दैट. तो I was invested in that. As for my study strategies, on the very first day of college, मैं गई लाइब्रेरी को और मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स इकट्ठा कर लिए और उधर ही बैठकर मैंने कंपेयर किया कि कौन से क्वेश्चंस हर साल रिपीट होते हैं, कौन से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है.
और मैंने नोट डाउन कर लिया. एंड देन आफ्टर दैट मेरे टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे. दे यूज्ड टू सेंड अ लिस्ट लाइक ये क्वेश्चंस दे विल फिर से आएंगे. तो उन पर बहुत फोकस करती थी मैं. और नोट्स भी मैं ऐसे कलर कोड करके सब कुछ रखती थी ताकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन होता है ना लिबरल आर्ट्स में, तो दिमाग में बैठाना था, तो इसलिए वो करती थी. एंड देन एनर्जी मैनेजमेंट करती थी. लाइक कौन सा टाइम है दिन का जब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी मुझे फील हो रही है, जब मेरा माइंड कम्प्लीटली ब्लैंक है, नया इन्फॉर्मेशन ले सकती हूँ मैं, तो वो है ना 4 AM से 8 AM तक था. लाइक वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग. लाइक आई यूज्ड टू वेक अप एट 4, फुल फ्रेश रहती थी और तभी मैं पढ़ाई शुरू कर देती थी. एंड उस टाइम पर कोई भी डिस्टर्बेंसेस नहीं होते, तो इसलिए जब भी मैं बैठकर सारे मुश्किल टॉपिक्स ख़त्म कर देती थी और सारे सिंपलर टॉपिक्स ओवर द डे आई यूज्ड टू स्पेस आउट. और कॉलेज से लौट कर आते ही लाइक वन मोर इम्पॉर्टेंट दिस थिंग टेक्निक विच आई हैड लर्नड इज़ जो भी लैंग्वेज में आपको सिखाया जाता है कॉलेज में, उसे जब अपने मदर टंग में कन्वर्ट करके बोलते हैं तो वो दिल और दिमाग में और पक्का बैठ जाता है. तो इसलिए मैं कॉलेज में ऑब्वियसली इंग्लिश में सिखाते थे और घर पर आकर मैं मम्मी को सब कुछ उर्दू में बोलती थी. सारा हिस्ट्री सुना दिया मैंने, इंडियन और लास्ट ईयर फॉरेन हिस्ट्री सब कुछ. लाइक हिस्ट्री एग्ज़ाम के लिए मैं ऐसे ही प्रिपेयर होती थी. सब कुछ मैं मेमोराइज़ कर लेती थी इंग्लिश में और फिर मम्मी के पास आकर बैठकर सब कुछ उर्दू में कन्वर्ट करके बोलती थी. तो अगर एग्ज़ाम में भी अगर कोई स्लिप अप होता तो मुझे याद आता कि हाँ, इन माई मदर टंग इट इज़ लाइक दिस, तो और कॉन्फिडेंस से मैं लिख सकती थी. तो दैट इज़ वन मोर थिंग. हाँ, बचपन में क्या घर पर कोई पढ़ाता था? मतलब कौन, मम्मी पापा में से कोई ऐसे बैठ के? अप टिल 2nd स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड मम्मी पापा ही पढ़ाते थे. आफ्टर दैट मैं ही सेल्फ स्टडी कर लेती थी. मैथ्स के लिए थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए थी, तो 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स मुझे एक बहुत अच्छे मैथ्स के ट्यूटर मिले थे. उन्होंने मुझे पढ़ाया था अप टिल 10th. और बाकी के सारे सब्जेक्ट में सेल्फ स्टडी करती थी. तो अगर कोई सब्जेक्ट में आपको सहायता चाहिए तो प्लीज़ अप्रोच योर टीचर्स एंड गेट प्रोफेशनल हेल्प. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಪೋಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಈ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾಣಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ತಮಗೆ? मुझे कन्नड़ नहीं आता है. ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಲೇ ಹೇಳಿ. मुझे अभी यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये इतना अच्छा करेगी. मुझे था ये बहुत मेहनत करती थी और बहुत पढ़ती भी रहती थी, तो हम लोगों को यकीन था आएगा, लेकिन फर्स्ट आएगी ये बहुत सरप्राइज़ हो गया है. अभी हम पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ये रमज़ान में हम इतनी बड़ी खुशी नसीब करें हैं. और ये कॉलेज में बहुत सपोर्ट किया है, टीचर्स, प्रिंसिपल और बहुत स्टाफ, ये बहुत सबका बहुत तारीफ़ करते हैं. हम कांग्रेस करते हैं, उन सबका शुक्रिया अदा करते हैं. ಓಕೆ ಸರ್, ತಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ? ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಹಿಜಾಬ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಆಗಿತ್ತು PU ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ನಡುವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಪೋಷಕರು, ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು, ಸರ್ಕಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೆಟ್ಟಿ ರಾಜ್ಯ ಕಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. That's not a problem. So basically we have to go with the land of the law. If that is the college and that is the state's law, she has to follow and she is going to follow it, whatever it be. ಸಂತೋಷ ಹೇಗಿದೆ ಮಗಳ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫಾರ್ ಹರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಹರ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಹಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಪ್ಸುಮ್ಗೆ. ಹಿಂದೆ ಈ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಿಜಾಬ್ ಗಲಾಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನಿಸುತ್ತಾ ಅದು ನಿಮಗೆ? I didn't understand the question. ನಿಮಗೆ ಈ ವೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಜಾಬ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಗಿವನ್ ಅ ಟ್ರಬಲ್ ಟು ಯು? Not really, because it's like my father said, whatever is the law, we must follow it. And I didn't want anything to get in the way of my education, because I'm very ambitious and I want to reach my goals. So I didn't let that get in my way. ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಅಡ್ವೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಈ ಪ್ರಥಮ PUCಲಿ ಓದ್ತಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? I would say that they should work hard from the first day and never hesitate to ask teachers for advice and for guidance. They will always help you, they will always assist you, and also refer to previous year question papers, even that will help you a lot. So, and all the best. ಓಕೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅವರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಲೇಜು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಜೊತೆಗೆ NMRQಗೆ ಈಗ ಇದೇನು ಮೊದಲಲ್ಲ, ಕಳೆದ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ 2-3 ಹೆಚ್ಚು ರ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ರ್ಯಾಂಕ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂತಸವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಾಗೆ ತಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ?
ಖುಷಿಗೆ ಅದು ಲಿಮಿಟೇ ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್. ಯಾವಾಗೂ ರ್ಯಾಂಕು 6th 4th ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 8th ಬಂದಿತ್ತು, 9th ಬಂದಿತ್ತು, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಇವನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಟಾಪರ್ ಅಮಂಗ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೈ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಸರ್ಪಾಸ್ ದಿ ಖುಷಿಗೆ ಅದು ಸರ್ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸೊ ಎನಿವೆ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಮೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹು ಹಸ್ ಬೀನ್ ವೆರಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಟು ಮೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟಾಫ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಕರೇಜ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್. ಇದಿಷ್ಟು ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಸಂತಸದ ಮಾತುಗಳು. ক্যামেরাম্যান সন্তোষ জুতা, বিনয় কুমার কাশমানা, টিভি9 বেঙ্গলুরু। সম্মানিত দর্শক, আপনারা দেখতে পারলেন ভারতের কর্ণাটক রাজ্যের সেই হিজাব আন্দোলনের সেই তাবাসসুম শেখ মুস্কান, তিনি এবারে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। পুরো কর্ণাটক রাজ্যের মধ্যে তিনি ফার্স্ট র্যাঙ্ক নিয়ে এসেছে। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আসলে কি বলবেন আপনারা জানাবেন কমেন্ট বক্সে। এই সংবাদটি পাওয়ার পরে আপনাদের অনুভূতিটা আসলে কী রকম। গত বছর আল্লাহু আকবার স্লোগানে পুরো বিশ্ব কেঁপে উঠেছিল। মুস্কানের সাথে সাথে পুরো বিশ্বের ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা প্রতিবাদ জানিয়েছিল। হিজাব আন্দোলনের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি সারা বিশ্বে পরিচিতি অর্জন করেছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন তার ইমানের শক্তি, তার ইমানের পাওয়ার, তার ইমানি শক্তি দেখিয়ে পুরো বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন। একাই একদল উগ্রবাদী, উগ্রত্ব, গেরুয়াপন্থী মানুষদের রুখে দিয়েছিলেন তিনি আল্লাহু আকবার স্লোগান দিয়ে। ভারতের কর্ণাটক রাজ্যে যখন হিজাব আন্দোলন হয় তখন সর্বপ্রথম আওয়াজ তুলেছিলেন তাবাসসুম শেখ ওরফে মুস্কান খান। প্রিয় দর্শক শ্রোতা মণ্ডলী, আমাদের এই বোনটি এবারে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। আসলেই এটা আমাদের মুসলিম উম্মার জন্য সত্যি গর্বের বিষয়। প্রিয় দর্শক, ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন সকলের কাছে। ভিডিওটা ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন। আল্লাহ হাফেজ।